Hello everybody, welcome back to the channel. This is Satyam Jain and you are listening to me at Understand UPSC. So I received a massive response on the last video as it was evident by the amount of sheer cheating that various coaching institutes have done. But the point is that okay, now we know that what we do not have to do. We do not have to enroll in these so-called test series that were made to so-called help us but instead end up wasting our money and time. So what needs to be done? What needs to be done is being self-sufficient. What needs to be done is to learn to understand that what actually does a mains answer look like, what should it constitute, how are marks awarded, what are the certain components of a particular answer that makes it unique, different and mark worthy. In this particular series of masterclass, I'll be teaching to you, I'll be making you understand all those particular points. And if you'll show a bit of faith and a bit of trust, you will just get to know all these things. So first, let me share with you a bit of a plan that I have thought of before beginning ahead. Let me share a bit of a plan with you. So the plan is I'll not be giving you a very long plan. The thing is that I'll be covering all the GS papers here and the essay paper, and also we are planning to give you some optional guidance and how to write various optionals. I was lucky enough to receive various heads up from various people who have already given mains and I've scored very well in the optional subjects. So various subjects like sociology, PSIR, philosophy, mathematics, and then botany. Then there were other subjects also. I'll start it in a bit. So I'll be telling you in which particular optionals we will be guiding you for answer writing. But all these areas will be handled by me. I'll not be subletting them to anybody else. I'll be handling all these 5 areas. There will be 3 to 4 मास्टर क्लासेस, आई गेस 4 ही लगेंगी, तो 4 मास्टर क्लासेस होंगी इन अ पर्टिकुलर वीक, पर वीक. इन 4 मास्टर क्लासेस में व्हाट ऑल विल आई बी डिस्कसिंग विद यू. सो जैसे सबसे पहली चीज़ क्या होगी इसमें कि विल बी डिस्कसिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पेपर वाइज अ गुड आंसर, है ना. कौन से कंपोनेंट्स आपके आंसर में होने चाहिए दैट विल मेक इट लुक गुड. So how will we do it? We'll do it through a topper's copy. Okay, we'll understand what are the constituents of a good answer. I have been doing it in SFG from the past 2 to 3 years. पिछले 2-3 साल से मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से किस तरीके की चीज़ें डिराइव करनी होती हैं, समझनी होती हैं. इनमें भी हम कहाँ और इम्प्रूव कर सकते थे ये भी बताऊँगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपर के आंसर में और क्या बेटर हो सकता था. तो वॉट शुड वी डू? ओके, द गुड पॉइंट्स दैट दीज टॉपर्स कॉपीज हैव and that you should follow. So overall this will be a very comprehensive learning. I'll teach you how to understand a question. I'll teach you how to understand its core demand. I'll teach you how to put content into it. I'll teach you how to put presentation structure and other things into it. ये पूरा मैं समझाऊंगा, ठीक है. This is not अ क्लास जहाँ पे बस आपको ऐसे सुपरफिशियल नॉलेज दी जाएगी और नहीं कि आओ पेड कोर्स में आओ, वो सब नहीं होने वाला है. आई बी गिविंग यू डिटेल्ड इन डेप्थ नॉलेज. इसके बाद आपको किसी टेस्ट सीरीज, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बताने के लिए कि मेंस के आंसर कैसे लिखते हैं. बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद नॉट जस्ट आई बी शेयरिंग यू विद कि हमें करना क्या है, ऑल्सो बी टेलिंग यू वॉट नीड्स टू बी अवॉइडेड टू गेट गुड आंसर्स, कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है. वो क्या गलती हैं जिनकी वजह से आपका स्कोर 70s में, 80s में या फिर कभी कभी 90s में रह जाता है, एंड यू आर नॉट एबल टू शूट इट अप टू से 120 प्लस या से 110 प्लस. आप ये स्कोर शूट क्यों नहीं कर पा रहे हो जीएस में? क्यों ऐसे में लोग 70-80 मार्क्स पे आके अटक जाते हैं, एंड वाई आर दे नॉट एबल टू शूट देयर स्कोर्स बियॉन्ड 120 और बियॉन्ड 130. सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. Okay, there will be dedicated videos upon mistakes. Then what next? What more will I do? I'll be discussing you the original UPSC papers, original UPSC question papers, where I'll be specifically pinpointed be telling you
what particular thing was UPSC looking for in a particular question. For example, Rishabh, you know him well. He is my friend, my brother, and also one of a former SFG member, and also a student of ethics in who I have taught ethics for a long time. He scored 135 marks this year in GS paper 4. Okay, and this was an increase of, please pay attention here, around 50 marks देन हिज प्रीवियस मीन्स, पिछले मीन्स से लगभग 50 मार्क्स का एक ही पेपर में डिफरेंस क्रिएट कर दिया था हमने, बिकॉज वी स्पेसिफिकली न्यू कि कहाँ टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, क्या मिस्टेक्स हो रही थी, क्या गलतियां हो रही थी. वी टारगेटेड देम एंड वी कुड इंक्रीज द स्कोर टू दिस इज ह्यूज, ह्यूमंगस. एक ही मैंने अभी तक आंसर देखिए, एक ही मार्कशीट जो मैं आज डिस्कस भी करूंगा जिसमें इससे ज़्यादा स्कोर है. सो आई बी टेलिंग यू कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्या लिखा जाता है, क्या यूपीएससी डिमांड कर रहा है, आपको वो प्रिपेयर कैसे करना है. ओके आपको वो प्रिपेयर कैसे करना है, हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर दोज पर्टिकुलर थिंग्स, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा इस चीज़ में. तो मैं आपके PYQs भी कराऊंगा इन पर्टिकुलर सेशंस में. ओके साथ में दिस इज़ नॉट जस्ट अ वन वे कम्युनिकेशन, मैं आपको PYQs लिखने के लिए भी दूंगा. ओके मैं अपने चैनल पे PYQs पोस्ट करूंगा, द चैनल का लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. एंड आप उनको PYQs को लिखेंगे, आप उन PYQs को सबमिट करेंगे एंड देन मैं उनको डिस्कस करूंगा. ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ नहीं की हैं. मैं PYQs के साथ साथ आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा. ऐसे करके हम एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हम एक पर्टिकुलर GS के सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, लेकिन ये सब कब काम करेगा, सिर्फ तब काम करेगा जब आप ट्रस्ट दिखाओगे. अगर आप ट्रस्ट नहीं दिखाओगे, आप उन्हीं चीज़ों के पीछे भागोगे कि जाते हैं कोचिंग्स में एनरोल करते हैं, टेस्ट सीरीज लिखते हैं, कुछ नहीं होने वाला है. फिर रही बात ये कि जिन लोगों का इस बार मेंस है, ठीक है, उनको सबसे बड़ी दिक्कत दो आती हैं. एक तो ये कि भाई वो लोग आंसर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें, दूसरा वो स्पीड कैसे डेवलप करें. तो ये भी मैं पिछले दो मेंस से 2021 के मेंस में और 2022 के मेंस में 500 लोगों को करा चुका हूँ. ठीक है, कि स्पीड कैसे डेवलप होती है. और इंटरव्यू कॉल के बाद उन्होंने खुद मैसेज करके रिकॉग्नाइज किया था. ऐसे ये वो नहीं करते हैं कि जाके हम पूछें लोगों से कि भाई तुम्हें क्या हेल्प हुई है, वो कोई तरीका नहीं होता है. ओके तो ये मैं करा दूंगा, ये भी मैं करा दूंगा. स्पीड राइटिंग कैसे डेवलप होती है, आंसर राइटिंग स्किल भी मैं सिखा दूंगा. अब आपको क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू राइट, यू हैव टू वॉच दीज वीडियोज़, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये सारा काम आपका है. एंड ऑफ कोर्स यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दीज वीडियोज, टू आस्क मोर पीपल टू वॉच देम. अगर चैनल की रीच नहीं बढ़ेगी तो कैसे कोई भी टूटेगा मोनोपली. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं आपसे बदले में डिमांड कर रहा हूँ भाई. ठीक है, क्लियर है. थोड़ा सा ट्रस्ट रख लेना कुछ पर्टिकुलर दिन, एंड देन आई विल शो यू कि आपके खुद के आंसर्स में आपको कैसे चेंजेस दिखेंगे. सो अभी के लिए मेरा ये प्लान है कि मैं पहले 2 वीक्स में आपको बहुत अच्छे से GS4 कवर कराऊंगा डिटेल में. ठीक है, मैं आपके साथ टॉपर्स कॉपी भी डिस्कस करूंगा, मिस्टेक्स भी डिस्कस करूंगा, एक्चुअल UPSC PYQs भी डिस्कस करूंगा, मैं आपसे केस स्टडीज़ भी डिस्कस करूंगा. ठीक है, सब कुछ डिस्कशन होगा, मैं आपसे आंसर्स लिखवाऊंगा भी, आई विल मेक यू राइट आंसर्स ऑल्सो. तो इनिशियल 2 वीक में ये प्लान है. जैसे आज 6 तारीख है तो मान लो 20 जून के आसपास तक ये प्लान है. तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से अपने GS4 के सोर्स से पढ़ना है. अगर आप कहोगे, अगर आप नहीं जानते हो GS4 कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बता देना, आई विल टेल दैट ऑल्सो. ठीक है, ये तो मैं पढ़ाता भी हूँ यार, GS4 तो मैं पढ़ाता भी हूँ पिछले 2 सालों से. कितने लोगों के अच्छे मार्क्स आए यार GS4 में इस बार उस कोर्स से. बट है नहीं ना, वो चीज़ नहीं है वो कि हम आए और जाके क्लेम करें, अरे देखो ये मेंस का क्वेश्चन मेरे यहाँ से आ गया था. दैट इज़ अटर गार्बेज. खैर ठीक है, अगर आप ये ट्रस्ट कर लोगे तो फिर वी आर डन. ओके सो आज का प्लान, इस पर्टिकुलर लेक्चर का प्लान ये है कि मैं आपसे सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करूंगा कि आंसर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं आंसर राइटिंग में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत रेयरली कोई बताता है. ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपसे जो AIR 2 हैं इस बार के, गरिमा लोहिया, उनकी एथिक्स की
शीट डिस्कस करूंगा मैं आपसे। इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पूरी शीट डिस्कस नहीं कर पाएंगे आज, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। राइट, शुरू करें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा वो है कि एक आंसर के एक ओवरऑल कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक गुड आंसर के, व्हाट ऑल इज द एग्जामिनर लुकिंग फॉर, या फिर व्हाट ऑल कैन यू पुट इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन टू मेक इट लुक गुड और गेट मार्क्स इन इट। ठीक है, तो मैं इसको ना 3 हेडिंग्स में बताता हूँ। जैसे एक होता है मेटा कंटेंट। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज मेटा कंटेंट, द सेकेंड पार्ट इज कंटेंट, एंड द थर्ड पार्ट इज पोस्ट कंटेंट। ओके, सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज मेटा कंटेंट। Meta content constitutes of thing that you have to look into a question before writing your answer. आंसर लिखने से पहले, कंटेंट डालने से पहले आपको एक क्वेश्चन में जो चीज़ें देखनी होती हैं उसको बोलते हैं मेटा कंटेंट। ओके, व्हाट ऑल डज इट कॉन्स्टिट्यूट? इट कॉन्स्टिट्यूट्स द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। And fourth and the most important, it constitutes the various parts of the question. ये है आपका मेटा कंटेंट। क्या होती है चीज़ें? सपोज करिए कि आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि भाई गांधी जी का रोल डिस्कस करो इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, या फिर ये बताओ गांधी जी नहीं होते तो इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसी दिखती। हाँ चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। हाउ वुड हैव द इंडियन नेशनल मूवमेंट लुक्ड लाइक इफ देयर वाज नो गांधी जी? सपोज करो ये क्वेश्चन है, और आप इसमें डिस्कस कराओ गांधी जी का रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप इसमें बताओ कि गांधी जी ने चंपारण किया था, खेड़ा किया था, अहमदाबाद किया था। अब कंटेंट तो बहुत हैवी है आपका। आप इसके बाद बताओ कि उन्होंने कैसे दलितों के लिए काम किया, उन्होंने कैसे भारत भ्रमण किया, उन्होंने कैसे खिलाफत मूवमेंट जोड़ी, उन्होंने कैसे किसान मूवमेंट जोड़ी, उन्होंने कैसे क्विट इंडिया करवा दिया। सब कुछ बताओ आप, है ना। और अगर गांधी जी नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। राइट, तो आपने क्या मिस किया है यहाँ पे? आपने कंटेंट तो बहुत ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, लेकिन आपने क्या मिस कर दी? डिमांड मिस कर दी आंसर की। 90% केसेस में, प्लीज़ ध्यान से सुनना, 90% केसेस में लोग मीन्स में इसलिए स्कोर नहीं करते हैं कि उनका मेटा कंटेंट खराब होता है। यहाँ पे वो मैसअप कर चुके होते हैं। तो अगर आपका मेटा कंटेंट ठीक हुआ है तो पहली बात है कि आपको बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन में लिखना क्या है। अनटिल अनलेस आपको ये नहीं पता है कि डिमांड क्या है, कोर क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का एसेंस क्या है। जैसे मैं आपको कल वाली वीडियो में एक चीज़ समझा रहा था कि एसेंस क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता कि इसमें वेरियस पार्ट्स क्या पूछे गए हैं, वेरियस हेडिंग्स क्या बनेंगी, तब तक आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तब तक तो आपका स्कोर 90 भी टच नहीं करेगा किसी भी जीएस सब्जेक्ट में, ये गारंटी है। ओके, कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो बस ये देखते हैं कि आपने पॉइंट कितने लिखे, उस पर नंबर दे देते हैं। टू हेल्प विद देम, भाड़ में जाए। पहली चीज़ समझ में आ गई। अब ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी डिटेल कैसे होती है, क्या होता है, वो आप समझोगे जब मैं आपको आंसर्स लिखना सिखाऊंगा। ओके, सेकंड चीज़ क्या होती है? कंटेंट। कंटेंट में क्या क्या आता है भाई? इसमें एक तो सबसे पहले आता है आपका बेसिक कंटेंट, कि आपको डिमांड समझ में आ गई, आपके पास बेसिक कंटेंट होना चाहिए। राइट, आपके पास बेसिक डेटाज होने चाहिए, बेसिक इन्फो होनी चाहिए, बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए, बेसिक आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, बेसिक एग्जाम्पल्स होने चाहिए। दूसरा होता है कि आपके पास स्टैटिक की और करंट की नॉलेज होनी चाहिए। ये काम आएगा जब हम जीएस की आंसर राइटिंग करेंगे, कि जीएस 4 में कोई क्वेश्चन पूछा है मान लीजिए केस स्टडी में, तो उसमें करंट का लिंकेज क्या है, उसमें स्टैटिक का लिंकेज क्या है, तो आपके पास ये लिंकेज होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको फाइनल लैब दिलाती है, जो आपके स्कोर को 420 या 425 से लेके 440 लेके जाएगी, या 400 से, मान लो 400 से जो आपके स्कोर को 440 लेके जाएगी, ये 40 मार्क्स जो बूस्ट होते हैं, इसको मैं बोलता हूँ एडवांस कंटेंट। ठीक है, तो ये हम कोशिश करेंगे डेवलप करने का। ओके, बात समझ में आ गई। एसए में भी सेम चीज़ होती है। एसए का तो हाँ, एसए की मैंने बताई नहीं स्टार्टिंग में, एसए की क्लासेस में अलग से लूँगा और आपको दिखाऊंगा, प्रॉपरली दिखाऊंगा कि एसए में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, यूपीएससी क्या मांगता है, क्यों लोग मैसअप करते हैं एसए में, क्यों कोई 70 स्कोर कर रहा है और कोई 140 स्कोर कर रहा है, पूरा समझाऊंगा। क्लियर। फिर अगली चीज़ क्या है? ये कंटेंट समझ में आ गया, इसमें कैसे कैसे डेवलप करना है, क्या डेवलप करना है, वो आई टीच। लास्ट इज द पोस्ट कंटेंट थिंग, कि भैया आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आपके पास बेसिक एंड एडवांस वो भी है, क्या बोलते हैं, कंटेंट भी है। अब आपको उसको फिट इन कैसे करना है। अब ये जो पोस्ट कंटेंट की चीज़ है ना,
ये आई है पिछले 3 सालों में लगभग, पिछले 2 से 3 साल मान लो, हाँ, 2020, 2021, 2022, और अब ये बढ़ती जा रही है। तो इसके चक्कर में क्या है ना कि जो इससे पहले के रैंकर्स हैं उनको इस चीज़ का ना कोई आइडिया नहीं है, विद नो ऑफेंस टू एवरीवन, बट उनको इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वे आके बोलते हैं कि आप ना पेजेस भर दो और आपको ना मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, इससे ना आप 380 तक पहुंच सकते हो, लेकिन उनको ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, कि जो 2020 से पहले के रैंकर्स हैं, दे डू नॉट हैव मच क्लू अबाउट कि व्हाट इज पोस्ट कंटेंट। उनके लिए इट इज़ अ गेम ऑफ क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन समझा और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए, बस इतना ही गेम है उनके लिए ये। तो पोस्ट कंटेंट क्या होता है फिर? ये पोस्ट कंटेंट होता है कि भाई अब आपको, आपके पास कंटेंट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्वेश्चन की डिमांड की समझ है, लेकिन आपका आंसर अब यूनिक कैसे बनेगा? ठीक है, ये आंसर यूनिक बनता है कई चीज़ों से। सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर, आप क्या देते हो अपने आंसर को। जैसे किस क्वेश्चन में आपको टेबल बनानी है, किस क्वेश्चन में आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देना है, किस क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच यूज़ करनी है। सेकंड चीज़ क्या होती है? सेकंड चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, कि आपने अपना कंटेंट तो लिख लिया, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट। कौन से पॉइंट्स पहले आएंगे, कौन से पॉइंट्स बाद में आएंगे, जब वो पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो किस तरीके से एग्जामिनर को डिस्प्ले होने चाहिए कि वो देखते ही कहे कि अरे यार मज़ा आ गया, और उसके हाथ से मार्क्स निकले ही निकले। देन मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट चीज़ होती है इसमें, वो होती है डाइवर्सिफिकेशन इनटू वेरियस डिमेंशंस। ठीक है, ये चीज़ बहुत लोग बताते हैं, इसके लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, अलग अलग अप्रोचेस बताई जाती हैं कि कैसे डायमेंशन जनरेट करनी है, लेकिन ये है बहुत ही ओल्ड स्कूल चीज़। ओके, आज तक जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसी चीज़ पे अटके हुए हैं कि डायमेंशंस बहुत सारे जनरेट कर दो। डायमेंशंस एज इन वही सब होती है। अभी मैं बैठ के यहाँ बैठ के आपको 10 डायमेंशन जनरेट करके दिखा देता हूँ, कुछ भी टॉपिक बोलो, है ना। पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, लीगल डायमेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, और भी पता नहीं कितनी निकल के आ जाएंगी। कुछ नहीं है ये, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता, बकवास है ये सब। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ मार्क्स तक तो चलो लेके जाएगा ही जाएगा तुम्हें, लेकिन उसके बियॉन्ड कैसे जाओगे? उसके बियॉन्ड इंसान जाता है सब डायमेंशनिंग करके। ठीक है, डायमेंशंस एंड सब डायमेंशंस, ये सब डायमेंशंस करना कोई नहीं सिखा रहा है, क्योंकि अगेन कहाँ से आएगा? ये सिर्फ उन लोगों को पता है जिन लोगों ने खुद से काम किया है इस चीज़ पे और खुद से अपने मार्क्स इंक्रीज होते हुए देखे। ठीक है, तो डायमेंशंस, सब डायमेंशंस, डायमेंशंस आपको जनरेट करना कोई भी सिखा देगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, तो दैट इज़ ओके। वो हार्डली एक क्लास का काम है। आई सिट एंड आई टीच यू कि भाई कैसे भरना है आंसर को। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई वाज ट्रेनिंग 2021 वाले एस्पायरेंट्स, जिसमें से 2 रैंक्स बहुत बढ़िया आई थी, तो एक बार आई वाज डिस्कसिंग, उनमें से एक के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था मैंने बोला कि ये क्वेश्चन पढ़ो और देखो उसका तुम्हें कोई आइडिया है क्या? ज़ीरो, क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं था। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। उसने बोला मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने फ्रॉम जीरोथ नॉलेज, जीरोथ, इस आंसर को ऐसा बना दिया था कि एक एग्जामिनर देखे तो इस पर अच्छे खासे नंबर देके जाए, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ वो डायमेंशंस, वो डाइवर्सिफिकेशंस कैसे करी जाती हैं, लेकिन ये यहाँ पे गाड़ी रुकती नहीं है, इसके आगे आपको बढ़ना है, आपको सब डायमेंशनिंग करनी है, तब आपका आंसर उस लेवल पे पहुंचेगा जिस लेवल पे भाई टॉप स्कोर मिलता है। ओके, ये एक दिन में सब नहीं आएगा, यू विल हैव टू बी विद मी, यू विल हैव टू स्टडी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं चीज़ों को पेड अभी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पेड करते ही आपकी ना ऑटोनॉमी चली जाती है। तो मुझे ना ये पेड वेड चीज़ें इतनी पसंद है नहीं, मैं चीज़ों को रखना चाहता हूँ आपके लिए फ्री। लेकिन फ्री की चीज़ों की क्या है भाई, रिस्पेक्ट नहीं होती है। लोगों को लगता है कि कोई जब तक चार्ज नहीं कर रहा है तब तक नहीं है वो अच्छा, है ना, वो नहीं देगा क्वालिटी। अब दिक्कत सारी की सारी यही है। तो अगर आपको मेरी क्वालिटी पे ट्रस्ट है, अगर आपको हल्का सा भी ट्रस्ट दिखेगा इस चीज़ पे, तो मैं आपके लिए जान डाल दूंगा अपनी। अगर आपकी तरफ से ट्रस्ट नहीं दिखेगा तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, है ना। इतना तो बनता है ना मेरा कि भाई आप एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ट्रस्ट करो इस इंसान पे। कूल।
तो ये चीज़ है, आपको समझ में आ गई, आपको प्लान थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बहुत लंबा प्लान नहीं दे रहा हूँ आपको कि मैं मेंस तक क्या क्या कैसे कैसे कराऊंगा। अभी ये 2 वीक का प्लान, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बीच में मैं एक एसए की क्लास भी डालूंगा पक्का इन 2 वीक्स में ही। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ क्या समझ में आ गई कि भाई एक आंसर के लिखने में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, मेटा कंटेंट, कंटेंट एंड पोस्ट कंटेंट, और इनके अंदर के डायमेंशंस क्या होते हैं, इनके अंदर के सब पार्ट्स क्या होते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन, आपको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए इससे। ठीक है, फिर अब हम डिस्कस करेंगे एक फाइल, एक अच्छा एक चीज़ जो और पेंडिंग है मेरी तरफ से जो मैं आपको डिलीवर करूँगा, वो है कि अलग अलग मेंस के पेपर को आपको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, ये 2023 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको कोई आइडिया नहीं है मेंस को, 2024 वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो मैं ये वाली क्लासेस भी आपको इसी बीच में दूंगा कि आपको मेंस प्रिपेयर कैसे करना होता है, उसका कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, क्या करना होता है। अगेन, यू डू नॉट नीड एनी क्लासेस फॉर दिस, फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ, क्लासेस से किसी का भला नहीं होता मेंस में। आप क्लासेस ही देखते रह जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लासेस के बाद समझ भी नहीं आएगा कि अब इतना ये तो सब पढ़ा हुआ था, अब क्या करूँ, आंसर कैसे लिखूँ। खैर चलिए, ये चीज़ें हो गई। अभी आई गेस मैंने इस पूरे में 20 मिनट ले लिए, तो आज अगले 20-25 मिनट में हम जितना डिस्कस कर पाएंगे उतना करते हैं। सो लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू द थिंग नाउ, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आज मैंने ये 20 मिनट में मेरे को चीज़ें बतानी थी तो मैंने बता दी आपको। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। सो ये गरिमा लोहिया मैम की फाइल है, और इन्होंने 10 सितंबर 2022 को ये फाइल लिखी है। वाई एम आई फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डेट इज़, क्योंकि जो एथिक्स का GS4 का पेपर हुआ था वो आई गेस 17-18 तारीख को हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो ये फाइल लिखी है ये जस्ट 1 वीक पहले लिखी है अपने 141 के स्कोर से। जिस दिन उन्होंने 141 स्कोर किया उससे जस्ट 1 वीक पहले उन्होंने ये फाइल लिखी है। तो ये फाइल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ये फाइल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें उनका एक्चुअल अप्रोच दिखेगा कि उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअली में क्या किया होगा। क्योंकि 1 वीक में, मेंस से पहले 1 वीक में कोई भी इंसान अपना अप्रोच चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस 1 वीक में जब उन्होंने अप्रोच चेंज नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि जो इस शीट में अप्रोच है वही उनका एक्चुअल एग्जामिनेशन में अप्रोच रहा होगा, और उस अप्रोच से उनके कितने मार्क्स आ गए, 141। तो अगर हमें ये अप्रोच समझ में आ जाए, हमें समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और ये अप्रोच समझाने के लिए और ये चीज़ समझाने के लिए आपके पास सत्यम जैन बैठा है। ठीक है, अभी एकदम थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे पूरी की पूरी शीट का। समझ में आ गई बात, चलें करें शुरू। तो यहाँ से करते हैं श्री गणेश। ये देख लीजिए 3 घंटे में उन्होंने फाइल लिखी है, एग्जामिनेशन में भी 3 घंटे में लिख के आएंगे, तो मतलब सेम टू सेम आपकी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन, सक्सेसफुल पीपल आर नॉट दोज हु डिड नॉट फेल but those who persisted in turbulent times and kept moving after a failure. In light of this statement, examine the importance of adversity quotient in life. How can adversity quotient be developed? ओके, अब आपको लगेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, पर आपको कुछ नहीं समझ में आया। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं किए हैं, लेकिन वो होते हैं जो टर्बुलेंट टाइम्स में भी परसिस्ट किए हैं। ठीक है, टर्बुलेंट टाइम्स कौन से होते हैं, फेलियर के टाइम्स, दिक्कत के टाइम, प्रॉब्लम के टाइम, उसमें परसिस्ट किए हैं। और केप्ट मूविंग आफ्टर अ फेलियर, है ना, परसिस्ट किया। एंड क्या समझ में आया, सक्सेसफुल पीपल कौन से होते हैं, जो टर्बुलेंट टाइम्स में परसिस्ट करते हैं प्लस फेलियर के बाद मूव करते हैं। तो परसिस्ट करते हैं और फिर मूव अहेड करते हैं, ये सक्सेसफुल पीपल होते हैं। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्सिटी क्वोशंट इन लाइफ एंड हाउ कैन एडवर्सिटी क्वेश्चन भी डेवलप्ड। अब देखो यहाँ पे ना ये 2 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख ही गए। द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्सिटी क्वेश्चन इन लाइफ, इसको एग्जामाइन करना है, और हाउ कैन दिस बी डेवलप्ड, ये तो आपको क्लियरली दिख गए। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यूपीएससी बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो ये वाला लाइन आपको लिख के दे रहा है। तो अगर आप ये वाली लाइन को मिस कर रहे हो, इस वाली चीज़ को आप मिस कर रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्या एड्रेस करना है, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको कैसे एड्रेस करना है। देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। पहला ये कि भाई सक्सेसफुल पीपल सिर्फ वो नहीं होते जो फेल नहीं करते, लेकिन वो होते हैं जो परसिस्ट करते हैं प्लस कीप मूविंग करते हैं। अब लेट अस सी इस चीज़ को, क्या एक चीज़ हमेशा याद रखो, इस चीज़ को आपको इंट्रो में एड्रेस करना है।
जो ये पहली लाइन है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, आपको क्वेश्चन का मेजर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझ में आ गया है. सो लेट अस सी हाउ हैज मैम डन इट. दो सक्सेस इज सीन फ्रॉम द नैरो प्रिज्म ऑफ अचीवमेंट, इट हैज़ अ ब्रॉडर एंगल टू इट. देखो सबसे पहली लाइन में इन्होंने क्या बोला कि हु डिड नॉट फेल, है ना. तो यानी कि जो सिर्फ पास हो जाते हैं हम उसी को अचीवमेंट मान लेते हैं, उसी को सक्सेस मान लेते हैं, उस अचीवमेंट को सक्सेस मान लेते हैं. लेकिन ये एक नैरो प्रिज्म है, हमें एक ब्रॉडर एंगल देना पड़ेगा. स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल लाइक राम मोहन रॉय, बी आर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, टी एन सेशन आर फुल ऑफ इनिशियल फेलियर्स एंड हिकअप्स. आ गया ना, टर्बुलेंट टाइम्स आ गया, टर्बुलेंट टाइम्स, बट वॉट केप्ट देम मूविंग. आ गया, मूव आउट, मूव करते रहना है. केप्ट मूविंग आफ्टर अ फेलियर वॉज अ स्पार्किंग डिजायर टू अचीव देयर गोल एंड अल्टीमेटली दे टर्न सक्सेसफुल. तो इस पूरे इंट्रो में क्या चीज़ अच्छी है, यहाँ से ये सीख लो. इस पूरे इंट्रो में ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने एक तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट को क्या कर दिया है, एड्रेस कर दिया है. दूसरी चीज़ क्या अच्छी है कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं. पता है इवेल्युएशन कराएंगे तो क्या इवेल्युएशन मिलेगा, लॉन्ग इंट्रो, कीप इंट्रो शॉर्ट. सॉरी, ये वैल्यूएशन मिलेगा. ओके ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आई एम रियली सॉरी, द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्सिटी क्वोशेंट इन लाइफ, ये आपको एग्जामिन करना है. उससे पहले अब इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा टर्म दिखे दैट नीड्स टू बी डिफाइंड, तो आप उसको डिफाइन करो. लेकिन वो डेफिनेशन आपको इंट्रो में ही नहीं भर देनी है. इंट्रो में आपको क्या डालना है समझ में आया, कैसे एड्रेस करना है इंट्रो में, समझ में आ गई ये चीज़. अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, इस टर्म को डिफाइन किया है. एडवर्सिटी क्वेश्चन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अनफेवरेबल सिचुएशन एंड नॉट बी ओवरवेल्म्ड, कि खराब सिचुएशंस में भी खड़ा रहे लेकिन डरे ना. ओके, रेदर स्ट्राइव हार्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल. अब बताओ ये कोई डेफिनेशन उन्हें रट के थोड़ी गए हैं, ये नहीं ना, ये अंडरस्टैंडिंग से है कि भाई एडवर्सिटी क्या होती है. एडवर्सिटी होती है जब आपकी लाइफ में खराब टाइम्स आते हैं, जब टफ टाइम आते हैं. जैसे इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, जैसे इमोशनल क्वेश्चन होता है, करेक्ट, वैसे एक एडवर्सिटी क्वेश्चन होता है. ओके, अब इन्होंने पहली हेडिंग जो बनाई है, थोड़ा सा इसको हेडिंग बना के लिख सकते हैं वैसे, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्सिटी क्वेश्चन इन लाइफ. तो क्या इंपॉर्टेंस है सबसे पहले ये देख लेते हैं. नाउ सी, जो उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है वो इन्होंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बता दी, ताकि एग्जामिनर ज़्यादा बोर ना हो सिर्फ देख देख के. ठीक है, तो अगर बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उसमें से आप एक पार्ट को ऐसे भी एड्रेस कर सकते हो. तो यहाँ पे भी कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं. हेल्प्स टू सेल थ्रू डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज, स्ट्रेंथेन्स आवर विल पावर, नेवर गिव अप स्पिरिट, कैन हेल्प अदर्स एंड. ठीक है ठीक है. तो ऐसे करके इन्होंने अलग अलग 6 पॉइंट्स दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि एडवर्सिटी क्वेश्चन हमें लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्सिटी क्वेश्चन. ओके क्लियर. अब ये वाले पॉइंट्स आप तभी लिख पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ लोगे. ठीक है, तो नहीं तो आपका रिपीटेड कंटेंट आएगा. तो वो रिपीटेड कंटेंट ना आए, कुछ अच्छे पॉइंट्स निकल के आए, इसके लिए आपको पढ़ना है. ओके, यू टू रीड, यू टू स्टडी. देन हाउ टू डेवलप द एडवर्सिटी क्वेश्चन, ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का, हाउ टू डेवलप द एडवर्सिटी क्वेश्चन. आप देखो क्या आंसर्स, मतलब देखो क्या क्या पॉइंट लिखे हैं. लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स एंड लीडर्स, उनके नाम दे दिए. ठीक है, फिर रिवॉर्डिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अर्ली एज एंड टेकिंग अप डिफिकल्ट टास्क्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन, पॉजिटिव सेल्फ एट्रीब्यूशन एंड सपोर्टिव पीयर ग्रुप. अब इन 4 पॉइंट्स में आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया है. शी हैज़ वेरी स्मार्टली, अब यही दिक्कत है, बस ये चीज़ नहीं बता रहे हैं इंडस्ट्री में कोई भी. शी हैज़ वेरी स्मार्टली यूज्ड द सिलेबस. कैसे कर रही हैं ये सब डिमेंशनिंग, कैसे कर रही हैं पॉइंट्स जनरेट. एथिक्स में तो बैठ के पॉलिटिकल इकोनॉमिक करते रहो, पॉइंट्स जनरेट कैसे हो रहे हैं, पॉइंट्स सिलेबस के थ्रू जनरेट हो रहे हैं. ओके, अब ये चीज़ कोई समझेगा क्योंकि मैं समझाऊंगा इसके, और फिर इसको कॉपी करके मार्केट में बेचा जाएगा. बट दैट्स ओके, किसी का घर चले, हमें क्या दिक्कत है, हम समझ लेते हैं. सिलेबस से कैसे निकल रहा है ये देखो. लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स एंड लीडर्स एज इट इज़, ये आपका सिलेबस में मेंशन्ड है एथिक्स के. रिवॉर्डिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अर्ली एज, क्या मेंशन्ड है एथिक्स के सिलेबस में, रोल ऑफ फैमिली, स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन फॉर्मिंग एंड रिफॉर्मिंग अ चाइल्ड. तो उसके अंदर ये सिलेबस में ये पढ़ा, एज इट इज़ मेंशन किया. इमोशनल इंटेलिजेंस एज इट इज़ वर्ड है,
स्ट्रेस मैनेजमेंट इसका पार्ट है, पॉजिटिव सेल्फ एट्रीब्यूशन एंड सपोर्टिव पीयर ग्रुप। ऐसे करके क्या यूज़ किए, कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए। समझ में आ रहा है किस तरीके से सिलेबस का यूज़ करना है? क्यों बार बार लोग बोलते रहते हैं सिलेबस यूज़ करो, सिलेबस पढ़ो। अरे भैया ये तो बता दो सिलेबस का यूज़ कैसे करें। सिलेबस पढ़ लिया, रट लिया, अब समझ में आने रहा है क्या करें, 4 पन्ने ज़्यादा याद कर लिए हैं। एंड देन यू कंक्लूड, given the difficulties in present life along with IQ and EQ, all AQ is inalienable skill needed। तो IQ EQ के साथ आपको क्या चाहिए आज के टाइम पे, AQ भी चाहिए। ठीक है, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ डायग्राम, यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम हियर, जहाँ पे आप यहाँ पे लिखो AQ, ऐसे बनाओ एक पिरामिड छोटा सा, यहाँ पे बनाओ IQ, यहाँ पे बनाओ EQ, और इसके बीच में क्या लिखो, AQ एम्पावरिंग IQ एंड EQ, या फिर एम्पावरिंग इन टफ टाइम्स या टर्बुलेंट टाइम्स अगर क्वेश्चन से यूज़ करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AQ जो है वो आपकी इंटेलिजेंस और आपकी इमोशनल क्वेश्चन को एम्पावर करता है इन टफ टाइम्स, परसिस्ट करवाता है इन टफ टाइम्स। तो ये आप छोटा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी दिखा सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? सीखा इस आंसर से कुछ? ओके किस तरीके से इंट्रो में क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, किस तरीके से आपको आगे हेडिंग्स बनानी होती हैं, किस तरीके से सिलेबस यूज़ करना होता है, बेसिक चीज़ समझ में आई? आगे बढ़े, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी बट फ्रॉम इनडोमिटेबल विल। गांधी जी की कोट है। वॉट डज स्ट्रेंथ मीन टू यू एंड हाउ फार डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, डिस्कस विद द सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ फिजिकल कैपेसिटी से नहीं आती, वो एक इनडोमिटेबल विल से आती है, वो अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। एक शेर भी है ना ऐसे, अदम्य इच्छा शक्ति जो बनाए इंसान को। वॉट डज स्ट्रेंथ मीन टू, आपके लिए इसका क्या मीनिंग है, एंड हाउ फार डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हैं, हाउ फार डू यू एग्री, है ना, हाउ फार डू यू एग्री, कहां तक सहमत हैं, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन का कोर, क्वेश्चन का एसेंस, क्वेश्चन का एसेंस यहां पे लाई कर रहा है। देखो, हाउ फार डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट में ये चीज लोग मिस कर जाएंगे, हाउ फार डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। चलो लेट अस सी। स्ट्रेंथ इन ट्रेडिशनल सेंस would mean physical capacity. However, history has examples to prove the physical strong evils like Ravan could be empowered through a indomitable will. हो गया जो मेन यहाँ पे पार्ट था, strength does not come from physical capacity but from indomitable will, उसी से स्टार्ट किया। It is often said that where an army of soldiers cannot penetrate, an army of principles can। अरे गजब, ये क्या किया इन्होंने पता है? इन्होंने कुछ नहीं किया, यूपीएससी प्रीवियस ईयर का एस्से है, ये एस्से का टॉपिक है, वो उठा के यूज़ कर लिया अपने इंट्रो में ही। दिस हाईलाइट्स दैट एवरी स्ट्रॉन्ग एंड फिजिकल कैपेबल पर्सन कैन नॉट डिफीट समवन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विल। तो एग्जामिनर बोलेगा वेरी लॉन्ग इंट्रो, मेक इट शॉर्ट, 3.5 ही दूंगा मैं तो, लेकिन दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ परफेक्ट, क्योंकि इंट्रो में आपने एग्जामिनर को क्या बता दिया, मेरे को माइथोलॉजी में भी ये चीज़ दिखती है, मेरे को कोटेशंस में भी ये चीज़ दिखती है, और क्या ये चीज़ हाईलाइट भी क्या करती है। तो आपने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी इस क्वेश्चन को लेके, वो आपने स्टार्टिंग में रिफ्लेक्ट करा दी इन योर इंट्रो। तो बाहर आओ इस चीज़ से जो घिसी पिटी चीज़ें मार्केट में चल रही है कि नहीं इंट्रो सिर्फ 2 लाइन का होना चाहिए, इंट्रो सिर्फ 3 लाइन का होना चाहिए, कम आउट ऑफ इट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था आपके लिए स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है, तो उन्होंने क्या समझाया, स्ट्रेंथ फॉर मी, एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना था कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मेरे लिए मतलब क्या है। डजंट ओनली मीन फिजिकल स्ट्रेंथ बट इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। 2 पॉइंट आ गए, ठीक है, इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी। वी सी एग्जाम्पल्स ऑफ विसल ब्लोअर्स हु कमिटेड सुसाइड बिकॉज दे वर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो एक पॉइंट आ गया, ये हो गया क्या, ये एग्जाम्पल हो गया आपका, आर्ग्यूमेंट प्लस एग्जाम्पल। क्लियर? देन स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स गुड हेल्थ, वैल्यू एजुकेशन, सेट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट आ गया। ऑल ऑफ दिस मेक्स वन इक्विप टू डील विद एनी चैलेंजेस इन वंस लाइफ। ठीक है, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल, तो आर्ग्यूमेंट प्लस एग्जाम्पल, और आर्ग्यूमेंट में अच्छे खासे कीवर्ड्स, डाइवर्सिफाई हो गया आंसर। आप मेंटल पे लेके चले गए, इमोशनल पे लेके चले गए, हेल्थ पे लेके चले गए, स्किल्स पे लेके चले गए, सब कुछ लेके चले गए। देन B.R. Ambedkar had a strong will, education and skill with which he secured heights for the untouchables। आ गया एक अच्छा एग्जाम्पल आ गया। Battles fought between Ravan and a small army of Ram, ये क्या किया इन्होंने, जो स्टार्टिंग में इंट्रो में दिया था उसको रिपीट किया है, तो दिस कुड बी अवॉइडेड, ये आप ना करो तो बेटर है।
ब्रिंग अ न्यू एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में तो रिप्लीट है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जाम्पल दे दो, कितने सारे बैटल्स के हैं, इवन बाद में, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस है, पूरा का पूरा बैटल ऑफ लोंगो वाला खड़े होकर संभाल लिया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि भाई इंडोमिटेबल विल क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो रेदर देन रिपीटिंग एग्जाम्पल यू कैन गिव अ न्यू एग्जाम्पल हियर। हाउएवर स्ट्रॉन्ग योर अपोनेंट, अ स्ट्रॉन्ग विल, स्किल, गुड इंटेंशन कैन शो द राइट वे। अब मुझे बताओ उन्होंने क्या मिस किया इस आंसर में, व्हाट डिड शी मिस, कर सकता है कोई फिगर आउट? वेरी गुड, हाउ फार डू यू एग्री, हाउ फार डू यू एग्री, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई इंडोमिटेबल विल इंपॉर्टेंट होती है ना, फिजिकल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि अगर आप सेकंड पार्ट नहीं एड्रेस करेंगे तो आप सिर्फ यही बोल रहे हैं। और हमें ये सिर्फ नहीं बोलना है, हमें बताना है कि कुछ सिचुएशंस में फिजिकल कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई बैटल लड़ रहे हैं, आप कोई वॉर लड़ रहे हैं, तो आपके पास कितने टैंक्स हैं, आपके पास कितने सोल्जर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उनकी विल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका नंबर भी इंपॉर्टेंट है। आप जब इंटरनेशनल अरीना की बात करते हैं तो ठीक है कि कुछ छोटी कंट्रीज हैं, इसराइल जैसी, जो बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के बैठी है, लेकिन साथ में वर्ल्ड पावर, सुपर पावर आज भी वो कंट्रीज है जिनके पास फिजिकल कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो आपको आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देंगे। यू हैव टू फिगर आउट अ गुड कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म, राइट? तो आप ये वाली चीज एड्रेस करोगे एंड देन आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो मेरे पास इंडोमिटेबल विल है विच बैक्स माई फिजिकल कैपेसिटी एंड माई फिजिकल स्ट्रेंथ, and if it is supported by good intentions and moral principles, then what comes out to be is ethical success. Clear? या फिर good use of strength, ethical strength, ये आप एग्जामिनर को लास्ट में बता के आओगे। दिस इज हाउ यू विल कंक्लूड योर आंसर। तो ये जितना स्पेस बचा है, रेदर यहाँ से लेके ये भी हटा देना चाहिए था, ये भी ना लिखते, ये भी रहने देते। इसमें सबसे पहले क्या लिखते, यही कि भाई कुछ सिचुएशंस में फिजिकल कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल कैपेसिटी कि आप कितने ताकतवर हैं, फिजिकल कैपेसिटी कि आपके पास कितने सोल्जर्स हैं, आपके पास कौन से बैटल टैंक्स हैं, है ना। यूक्रेन रशिया वॉर में देख लो, सिर्फ विल पावर से हो जाता नहीं होता ना, फिजिकल कैपेसिटी की भी जरूरत है ना। लेकिन एथिकल आंसर बनाना है तो उसके बाद क्या कि भाई हमारे गुड इंटेंशंस होने चाहिए, राइट, हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तब हम उस स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, एक एथिकल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज हाउ यू विल टेल इट। आगे बात समझ क्लियर? चले आगे चलें। तो यहां से हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनको कैसे एड्रेस करना होता है। तो आप इसमें एग्जांपल्स के साथ एड्रेस करोगे। जब आप इस सेकंड वाला पार्ट दिखाओगे ना, फिजिकल कैपेसिटी वाला, तो आप एग्जांपल्स के साथ एड्रेस करोगे इस चीज़ को, है ना। जैसे मैंने रशिया यूक्रेन वॉर का बताया, और भी कुछ आप ऐसे सोच सकते हो एग्जांपल्स, एंड देन यू विल पुट दीज एग्जांपल्स इनटू इट। आया समझ? सही है ना? चैनल का नाम अंडरस्टैंड। ओके चलिए देखिए, हाँ जो मैंने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था, किया भी था एक, गुड गवर्नेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लॉज बट अपॉन द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ दोज हु एडमिनिस्टर द लॉ। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई दे योर व्यू। कि जो गुड गवर्नेंस है वो लॉज पे डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस लॉ का एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, उसकी पर्सनल क्वालिटीज कैसी हैं, है ना। कानून का संचालन करने वालों के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है रेदर देन लॉज पे। क्या आप इससे एग्री करते हैं? और अपनी व्यू को जस्टिफाई करिए, ठीक है। तो सबसे पहले गुड गवर्नेंस की इन्होंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट में। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि मान लो गुड गवर्नेंस है तो उसको डिफाइन कर लीजिए। अब ये क्या कर सकते थे कि पहले इसको दे देते और गुड गवर्नेंस को नीचे डिफाइन कर लेते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट ही बिल्कुल ऐसी चीज़ से हो रहा है तो उन्होंने उसी सीक्वेंस को फॉलो किया। सबसे पहले गुड गवर्नेंस को डिफाइन कर दिया। ये यूएनडीपी की डेफिनेशन है, जिन्होंने इसमें 8 पॉइंट्स दिए थे, 8 पिलर अप्रोच, जिसमें उन्होंने बताया कि ये 8 चीज़ें अगर गवर्नेंस में है तो वो गुड गवर्नेंस है, ठीक है। एग्जामिनर को साथ में सबसे पहले पता चल गया कि भाई कंटेंट तो है। अब आगे देखते हैं, ये होता है इंप्रेशन छोड़ना। Confucius says that righteousness is the basis of good governance, thereby implying that any honest effort at good governance comes from within and not an externally enforced set of laws which can be bypassed। कर दिया क्वेश्चन से लिंक, पूरा का पूरा कर दिया एड्रेस कि भाई कोर्ट
अब देख रहे हो किस लेवल पे इन्होंने कोर्ट और उसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी, कि इनके पास एक कोर्ट भी रेडी थी इस चीज़ के लिए, प्लस उस कोर्ट को कैसे लिंक करना है क्वेश्चन से वो भी इन्होंने कर दिया। ब्यूटिफुल, यहीं पे नंबर मिल जाएंगे। राइटियसनेस is the basis of good governance, thereby implying that any honest effort at good governance comes from within and not an externally enforced set of laws which can be bypassed. Now, सबसे पहला, why are laws not enough? सबसे पहली हेडिंग बनी, गुड गवर्नेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लॉज। लेकिन क्योंकि हमें बिल्कुल नकारना नहीं था तो हमने क्या बोला, नॉट इनफ। ये नहीं बोला कि डज नॉट डिपेंड, डिपेंड तो करेगा लेकिन इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट लॉज लाइक आरटीआई, करप्शन लाइक कोल स्कैम, पीएनबी हैव टेकन प्लेस, ये हैपन हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नॉट एबल टू डिटर कॉलिजिव एंड पेटी करप्शन। तो मतलब क्या दिखा रहे हैं कि कैसे गुड गवर्नेंस जो है वो लॉज के होने के बावजूद भी नहीं आ रही है। वी हैव लॉज स्टिल वी आर नॉट एबल टू पुट इट टू गुड यूज टू एनफोर्स गवर्नेंस। ठीक है, इसमें एक चीज़ और की जा सकती थी, और बेटर थोड़ा सा क्या रहता अगर इसको इस तरीके से एड्रेस करते कि भाई देखो जैसे मान लीजिए गुड गवर्नेंस है, ठीक है, अब वो लॉज पे वो कह रहे हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन लॉज, क्यों, है ना, तो इसमें उन्होंने बताया कैसे, हाउ। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वॉट भी बता दो, वाई, थोड़ा सा वाई भी बता दो, तो इससे क्या आ जाएगा, एक एनालिटिकल बेंट ऑफ पॉइंट आ जाएगा इस चीज़ में। तो वाई डज इट नॉट डिपेंड, वाई डज गुड गवर्नेंस नॉट डिपेंड ऑन लॉज? बिकॉज laws are only as good as the society accepting them। जब तक सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जब तक सोसाइटी उनको इम्बाइब नहीं कर रही है, तब तक उन लॉज का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। लॉज आर ओनली एज गुड एज देयर एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। एग्जाम्पल वही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अभी जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया। इवन अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी कानून आने के बाद तब भी अनटचेबिलिटी आज भी 75 साल बाद इंडिया में प्रेवलेंट है, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसीलिए तो आप क्या बोल रहे हो, यही तो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, यही तो सरकार का, गवर्नमेंट का स्टैंड है कि हम सेम सेक्स मैरिज क्यों नहीं अलाउ करना चाहते, कि भाई सोसाइटी अभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। देन और केस में आप बता सकते थे कि लॉ पे इसलिए गुड गवर्नेंस डिपेंड नहीं करता है क्योंकि एट टाइम्स लॉ इज नॉट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, इट इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब तक लॉ इस चीज को फॉलो नहीं करेगा तब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि जो लॉ बनाए वो फेयर है। उसके इंप्लीमेंटेशन की तो चलो बात बाद में आएगी। जब तक लॉ इज नॉट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, जब तक इट इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तब तक वो गुड गवर्नेंस कैसे लेके आएगा। तो थोड़ा सा हम इसमें ये वाई वाला एंगल भी डाल सकते थे। ओके, इनफ पॉइंट्स हो गए, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने पास हैं। इसमें हमने और क्या पॉइंट्स डालने हैं वो देख लिए। लूप होल्स, हाँ लूप होल्स का भी पॉइंट है, गुड, कि भाई लूप होल्स होते हैं लॉ में। लॉज कैन ओनली डिसाइड द डायरेक्शन इन विच अ सोसाइटी शुड मूव, बट इट इज़ द कल्चर एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ गवर्नमेंट विच डिसाइड्स डायरेक्शन इन विच द सोसाइटी एक्चुअली मूव्स। बहुत बढ़िया, इसी को मैं बोलता हूँ एडवांस आंसर राइटिंग, कि भाई सिर्फ हेडिंग बना बना के पॉइंट मत दे आओ। ये देखो एडवांस आंसर राइटिंग है ये, कि उन्होंने बताया, उन्होंने लिंक किया कि लॉज जो है वो सोसाइटी की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको मूव नहीं करा सकते। मूव कराने के लिए आपको गवर्नमेंट चाहिएगी। सो व्हाट शी हैज डन इज ब्यूटीफुली लिंक्ड इट टू द क्वेश्चन। आई बात समझ? अब यहां पे पॉइंट्स दे दिए। इफ गवर्नमेंट इज वर्चुअस इट विल वॉलंटरीली डिस्क्लोज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, तो आपको आरटीआई का फेलियर दिखेगा ही नहीं। इट विल नॉट एंगेज इन करप्शन, साइफनिंग ऑफ फंड, तो आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अच्छा इंप्लीमेंटेशन दिखेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड फॉर पब्लिक वेलफेयर ओनली, ये भी कहाँ से है, एथिक्स के सिलेबस से। ये भी कहाँ से है, एथिक्स के सिलेबस से। ये भी कहाँ से है, एथिक्स के सिलेबस से। ये भी कहाँ से है, एथिक्स के सिलेबस से। दिस इज हाउ यू यूज द सिलेबस। चिल्लाते रहते हैं लोग कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, कीवर्ड्स कहाँ से डेवलप करूँ, मेरा कोर्स खरीद लो, मैं 500 कीवर्ड्स सिखा दूंगा आपको। अच्छा, ये मतलब आरबीआई का एग्ज़ाम है जिसमें आप मुझे कीवर्ड सिखा दोगे, उसका मीनिंग बता दोगे और मेरे मार्क्स आ जाएंगे। अरे चाचा रहने दो, चलेगा ये ज़माने। हाउएवर, अब देखो ये है इसका सेकंड पार्ट जो मैं बोल रहा था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। हाउएवर, इन द एंड बोथ लॉज एज वेल एज पर्सनली वर्चुअस पीपल आर नीडेड। लॉज भी चाहिए और वर्चुअस पीपल भी चाहिए।
Virtue theory of Greek scholars need to be accompanied by laws which help in ensuring accountability as well as bringing right kind of behavioral and attitudinal change among people. देखा किया ना एड्रेस इन्होंने, ये था ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो हाँ हम एग्री करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉज भी इंपॉर्टेंट है. इन दी एंड बोथ लॉज एंड वर्चुअस पीपल, लॉज भी चाहिए, वर्चुअस पीपल भी चाहिए. इसी के लिए वर्च्यू थ्योरी ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स लगेगा कि जो लॉज हैं वो किस चीज़ से कंपनीड हों, वर्च्यू थ्योरी से. तो इससे आप अकाउंटेबल रहोगे, इससे आप राइट काइंड ऑफ बिहेवियरल एंड एटीट्यूडनल चेंज लेके आओगे पीपल में, राइट. और इसमें आप क्या बोल सकते थे, और क्या इसमें ऐड कर सकते थे कीवर्ड, यहाँ पे आप वर्ड ऐड कर सकते थे कीवर्ड कर्म योगीज. दैट इज वाई देयर इज अ नीड फॉर कर्म योगीज टुडे टू एडमिनिस्टर द लॉज. क्लियर, समझ में आ गया. कर लें सेशन को यहीं पे ख़त्म. हालांकि मुझे ये वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है. चलो ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सेशन खत्म करते हैं. एन एक्टिव सिविल सर्विस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. Active civil service is necessary but not sufficient. India also requires civil service activism for fulfilling the vision of justice, liberty, equality for all. Analyze the statement citing relevant examples. अब ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत लिखते हैं, बहुत लोग. क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस में से आपको सब डिमेंशनिंग करनी होती है, कैसे क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को आपको डिमेंशन में कन्वर्ट करना होता है. ये लोग कोई नहीं सिखाता है, यहाँ से सीख लो आज. देखो, एन एक्टिव सिविल सर्विस इज नेसेसरी, ये ज़रूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है. इंडिया को और क्या चाहिए? इंडिया ऑल्सो रिक्वायर्स सिविल सर्विस एक्टिविज्म, कि भाई एक्टिव सिविल सर्विस तो चलो है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं हो रही है. तो सफिशिएंसी किस चीज़ से आएगी? सिविल सर्विस एक्टिविज्म से आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि इससे हम क्या फुलफिल करेंगे? फॉर फुलफिलिंग द विजन ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर ऑल. आपको याद है जब मैं आपको कल भी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था, जब आपको कल वाले वो पिछले वाले लेक्चर में मेंस मास्टर क्लास 1 में, कि यहाँ पे ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से सिविल सर्विस एक्टिविज्म की वजह से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी आएगी. और ये कोई एड्रेस करके नहीं आ रहा है, और ये एड्रेस करके नहीं आ रहा तो नंबर नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एनालाइज द स्टेटमेंट साइटिंग रेलेवेंट एग्जाम्पल्स. चलो देखते हैं. सिविल सर्वेंट्स वर envisaged as the steel frame of the country. Active civil service fulfilling its traditional role along with taking up new role created by needs of digitization, liberalization is necessary. Example: IPS Arif Sheikh who started चुप्पी तोड़ कैंपेन फॉर डीलिंग विद डोमेस्टिक वायलेंस. तो देखो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल परफेक्टली बताया कि देखो सिविल सर्विस, एक्टिव सिविल सर्विस ज़रूरी है ना. ये आज तक अपना ट्रेडिशनल रोल निभा रही है, जो अपकमिंग रोल्स हैं वो भी निभा रही है. एग्जाम्पल देके ये चीज़ समझा दी. तो इन्होंने क्या किया, एक्टिव सिविल सर्विस को ना कंडेम नहीं किया, इसको गलत नहीं बताया, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला ही नहीं था ये. एग्जामिनर ने सिर्फ इतना ही बोला था कि ये सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है, नेसेसरी तो आज भी है. तो नेसेसरी कैसे है वो उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि ये अपने ट्रेडिशनल रोल को निभा रही है और जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा टैकल कर रही है. लेकिन हाउएवर गिवन न्यू एंड इमर्जिंग चैलेंजेस सच एज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हेट स्पीच, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, सिविल सर्विस एक्टिविज्म इज नीडेड. लेकिन जो अपकमिंग के चैलेंजेस हैं इनकी वजह से हमें सिविल सर्विस एक्टिविज्म की ज़रूरत पड़ेगी. इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड किए जा सकते थे जो और ज़्यादा हमारी ग्रेव प्रॉब्लम्स दिखाते, विच इज़ साइबर थ्रेट्स, विच इज़ क्लाइमेट चेंज, विच इज़ एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स. ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. तो इसलिए हमें अब सिविल सर्विस एक्टिविज्म की ज़रूरत है. ठीक है, आगे क्या लिखा है, इट विल इंश्योर इन फुलफिलिंग विजन ऑफ जस्टिस. ये देखो, ये मैं आपको कब बताया था, मैंने आपको ये 2-3 दिन पहले जब वो क्लास अपलोड की थी, 2 दिन पहले, तब बताया था. इन्होंने पक्का यही किया. देखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इतने दिन पहले भी. ये चीज़ कोई नहीं समझाएगा आपको कि ये चीज़ कैसे एड्रेस करनी होती है, क्वेश्चन के अंदर से कैसे डायमेंशन जनरेट करना है ताकि डिमांड भी फुलफिल हो जाए और आपका क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाए. तो जस्टिस कैसे निकाल के लाएं हम, लिबर्टी कैसे निकाल के लाएगा ये, इक्वालिटी कैसे निकाल के लाएगा, ये 3 आपकी हेडिंग्स बन गई. इसके अंदर एग्जाम्पल्स एंड पॉइंट्स आ गए. यही था ना सिविल सर्विस एक्टिविज्म. जस्टिस कैसे इंश्योर करेगा, एग्जाम्पल टी.एन. शेषन who helped bring in electoral reform so that level playing field is maintained, true democracy is assured. लिबर्टी कैसे आ रही है, परमेश्वर अय्यर लेके आ रहे हैं, who worked for destigmatizing manual scavenging so that liberty and dignity of manual scavengers is maintained. प्रशांत नायर कैसे लेके आ रहे हैं. फिर इक्वालिटी कैसे आ रही है, आई.एस. तहोबा
स्टार्ट जो भी है, साथीदार कैंपेन, IAS चंपारण स्टार्टेड स्टार्टअप, चंपारण ही है ना ये, स्टार्टअप जोन टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर माइग्रेंट लेबर। देख रहे हो एक, अब इन्होंने जितने एग्जांपल्स याद आ रहे थे सिविल सर्विसेज के, जितने रटे हुए थे एग्जांपल सब यूज कर दिए इसमें। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिविल सर्वेंट्स का एग्जांपल एक ही में डाल दिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मिलने वाला था। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी का एक टॉपिक है एथिक्स में, जिससे एक क्वेश्चन हर साल आता है एथिक्स में, तो उसके लिए आपको एग्जांपल्स प्रिपेयर करके रखने हैं। 6 एग्जांपल प्रिपेयर कर रखे थे, 6 के 6 डाल दिए कि भाई मौका मिल गया तो छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ के खेलना है। एंड क्वेश्चन का क्वेश्चन एड्रेस कर दिया। इन व्यू ऑफ द फुलफिलिंग आइडियल्स enshrined in our preamble, every stakeholder including civil servant has to play a role, has a role to play। आई बात समझ? देखा? अब बताओ कौन इवैल्यूएटर बैठ के आपको इतना डिटेल में समझा देगा, या कौन सा टीचर बैठ के समझाएगा? कहाँ से समझाएंगे? इनोवेट करने का, समझने का, इवॉल्व होने का टाइम ही नहीं है टीचर्स के पास। वो घिसा पीटा मटेरियल पढ़ाए जा रहे हैं इतने सालों से। यूपीएससी इतना इवॉल्व हो गया है, इतना नया हो गया है, वो सब कहाँ पढ़ाने का टाइम है इनके पास? ठीक है, आई गेस 50 मिनट्स के आसपास का लेक्चर हो गया, तो मैं इसको बंद करता हूँ अभी, नहीं तो देखेंगे नहीं लोग बिल्कुल भी। आई होप आप लास्ट तक आए हैं। अगर आप लास्ट तक आए हैं तो बताइएगा, ठीक है, बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, बताइएगा इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है यार कि आप लोग इसको समझो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। नहीं तो दिस इज़ ऑफ नो यूज़, फिर इसका क्या फ़ायदा? अगर आप नहीं समझोगे तो कोई फिर फ़ायदा नहीं रह जाएगा ना इस चीज़ का। तो प्लीज़ शेयर करिए, बताइए लोगों को कि नहीं ज़रूरी है आपको इतना पैसा खर्च करना, यू विल बी एबल टू गेट थिंग्स हेयर ऑल्सो, ताकि ज़्यादा लोग देखें समझें। और सिर्फ ना इसकी बात नहीं है, रीच की बात नहीं है, बात है कि ये चीज़ कोई समझा नहीं रहा है। Nobody is teaching these things, nobody is making you understand these things, nobody is giving you these nitty-gritties. So please tell me, how did you like the lecture, and let me know in the comment section what you think about the lecture, and if you do then I'll be uploading the next lecture very soon। कल या परसों आपका नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, शायद एक दिन के गैप पे करेंगे, ताकि मेरे पास इनोवेट करने का अच्छा खासा टाइम हो। मैं भी वो बूढ़े टीचर्स की तरह ना बन जाऊँ जिनको कोई इनोवेट करने का टाइम नहीं है, जो बस पैसे छाप रहे हैं। आई डोंट वांट टू बिकम लाइक देम। सो प्लीज़ लेट मी नो हाउ वाज द लेक्चर, एंड we'll continue this in the coming series। I hope this session was helpful। This is Satyam Jain signing off for the time being till we meet next time। Jai Hind, Vande Mataram।